بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں انسان ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا۔ کوئی دن ہمارے لیے خوشخبری لے کے آتا ہے تو کسی دن ہمیں کوئی ایسی خبر ملتی ہے جس سے ہم اداس ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کسی امتحان میں ہم پاس ہو جاتے ہیں تو کبھی فیل ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہر پریشانی اور غم میں ہم صبر سے کام لیں، اور جب بھی ہمیں کوئی خوشی ملے تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اس کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے اور شکر کرے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر مصیبت پہنچے اور اس پر صبر کرے تو یہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں ملنے والی ہر خوشی پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور غم میں صبر کرنا چاہیے۔ اس پیاری سی بات کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبر نامے کو، اور سب سے پہلے پیش کرتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ جانیں گے کہ دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیم کو گھر گھر تک کیسے پہنچاتی ہے، مدنی مذاکرے کی اپ ڈیٹ اور پری ٹائم ایپ کی تفصیل، ہیٹ ویو کیا ہے اور اس کا ہماری باڈی پر کیا اثر ہوتا ہے، ہوم ورک یاد کرنے کی ایک زبردست ٹپ، چھوٹی آپا کی باتیں اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، اور آخر میں چھوٹا کام بڑا فائدہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں قرآن ٹیکسٹ کی جانب۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احمد اور میں آپ کو ہمارے قرآن ٹیکسٹ سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور قرآن ٹیکسٹ میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دعوت اسلامی قرآن کی تعلیم کو کیسے گھر گھر پہنچا رہی ہے۔ اس لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ہمارے پینلسٹ فہد بھائی نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی فہد بھائی دیکھنے والوں کو بتائیے کہ دعوت اسلامی قرآن کی تعلیم کو گھر گھر کیسے پہنچا رہی ہے؟ جی انشاءاللہ ہم صرف بتائیں گے نہیں بلکہ ڈیمو بھی کر کے دکھائیں گے۔ ڈیمو زبردست، تو اسٹارٹ کریں فہد بھائی۔ جی تو سب سے پہلے آپ کو اپنے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل فون کے براؤزر کو اوپن کرنا ہوگا، پھر براؤزر کی ایڈریس بار ٹائپ کرنا ہوگا www.dawatislami.net، تو آپ کو ایسا ویو دیکھنے کو ملے گا۔ اب ماؤس کے ذریعے اسکرول کر کے پیج کو نیچے کی طرف لائیں۔ یہاں اب آپ کو دو لسٹ نظر آ رہی ہوں گی، پہلی لسٹ ہے سورت کی، دوسری لسٹ ہے پارہ کی۔ آئیں سورت کی لسٹ کو دیکھتے ہیں۔ سورت کی لسٹ میں آپ کو قرآن پاک کی 114 صورتیں نظر آ رہی ہوں گی۔ آپ جس بھی صورت پر کلک کریں گے وہ صورت آپ کی اسکرین پر اوپن ہو جائے گی۔ جیسے کہ ہم سورۃ الفاتحہ پر کلک کرتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کا پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، مختلف قاری صاحبان کی آواز میں بھی سن سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی پارے یا سورت کی کوئی بھی آیت کی تلاوت کرنی ہو، ٹرانسلیشن یا تفسیر پڑھنا یا سننا ہو تو وہ آپشن بھی اس میں موجود ہے، اور یہاں سے ہی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پارہ کی لسٹ کو کلک کریں گے تو آپ کو اپنی اسکرین پر قرآن پاک کے 30 پارے نظر آئیں گے۔ آپ جس بھی پارہ پر کلک کریں گے وہ پارہ آپ کی اسکرین پر اوپن ہو جائے گا۔ جیسے ہم پارہ ایک الف لام میم پر کلک کرتے ہیں تو اس کا پہلا پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں آپ اس پارے کی شروع سے تلاوت، ٹرانسلیشن اور تفسیر پڑھ اور سن سکتے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند انفارمیشن بھی موجود ہے جس سے آپ کی قرآنی معلومات میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ جزاک اللہ فہد بھائی اتنی اچھی اور کام کی انفارمیشن ہمیں دینے کے لیے۔
जी तो बच्चों, आप भी अपने घर वालों तक ये इंफॉर्मेशन शेयर करें और सवाब कमाने के हकदार बने। अब दे मुझे इजाजत। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसे हमें पता है कि नमाज फर्ज है और इसकी फजीलत और अहमियत हम सुनते और जानते हैं, पर औकात नमाज किबले की सिमत और ज़वाल के औकात का मालूम होना भी जरूरी है। जी शहजान भाई, बिल्कुल। इसकी अहमियत को जानते हुए हमारी दावत इस्लामी के तहत शोभा IT ने प्रे टाइम्स ऐप यानी सलाह टाइम ऐप बनाई है, जिसमें इतने जबरदस्त फीचर्स हैं कि मैं क्या क्या बताऊं। उफरान भाई, आप हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि वो भी इस ऐप को डाउनलोड करें। जजान भाई, मैं आपको और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को इस पैकेज के जरिए इस ऐप की डिटेल्स देता हूँ। आइए मिलकर ये पैकेज देखते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, नमाज इस्लाम का दूसरा सुतून और सबसे अहम इबादत है, जिसे हर मुसलमान मर्द औरत को दिन में 5 मरतबा अदा करना होता है। इस अफजल इबादत की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए और उम्मत मुसलमान को नमाज के औकात से आगाह करने के लिए दावत इस्लामी के IT शोभा ने नमाज के औकात मोबाइल एप्लीकेशन पेश की है, जिसका नाम प्रेयर टाइम्स है, जो आपको वक्त पर नमाज अदा करने में मदद देगी। मजीद ये कि ऐप को एक दिलकश UI के साथ खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। इसके चंद फीचर्स आपसे शेयर करता चलूं। प्रेयर टाइम टेबल, नमाज के औकात ऐप आपको महीने की औकात का ऑप्शन देती है, जो आपको पूरे महीने की नमाज के औकात बताती है, ताकि आप अपना मामूल तरतीब दे सकें। जमात साइलेंट मोड, जिस मस्जिद में आप अपनी नमाज अदा करते हैं वहाँ मैनुअली पर जमात के औकात तय करें, ताकि उन मखसूस औकात में आपका फोन साइलेंट मोड ऑन कर दिया जाए। कज़ा नमाज, ये फीचर आपको आपकी कज़ा नमाज के बारे में अपडेट करता है। ये आपको अपने डेटा को गूगल ड्राइव में महफूज करने की इजाजत देगा। ये आपकी नमाज के रिकॉर्ड को बरकरार रखता है। तस्बीह काउंटर, ये एक हैरत अंगेज खुसूसियत है और इस्तेमाल में आसान है। इसका एक सादा और दोस्ताना इंटरफेस है। इस फीचर को इस्तेमाल करके आप आसानी से अपनी तस्बीहात गिन सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से फीचर इस ऐप में मौजूद हैं, तो इसे फौरन डाउनलोड करें। माशाअल्लाह, जबरदस्त, मजा आ गया, इतनी अच्छी ऐप। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने मोबाइल में आज ही बल्कि अभी इस ऐप को डाउनलोड करें और फायदा हासिल करें। जी बिल्कुल। और अब वक्त हुआ है मदनी मुज़ाकरे की अपडेट्स का। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। मदनी चैनल का सबसे फेमस प्रोग्राम है मदनी मुज़ाकरा, जिसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत खुद भी मौजूद होते हैं और अमीर अहले सुन्नत से किए जाते हैं मुख्तलिफ सवालात और अमीर अहले सुन्नत देते हैं उनके प्यारे प्यारे जवाबात। मदनी मुज़ाकरे के जरिए से लोग इल्मे दीन सीखते हैं और गुनाहों से तौबा करते हैं और नमाजी बनते हैं। जी हाँ, मदनी मुज़ाकरा इल्म का एक खजाना भी है। मदनी मुज़ाकरे में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बच्चियाँ और बच्चे भी वीडियोस के जरिए से पार्टिसिपेट करते हैं। मदनी मुज़ाकरे में छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों की वीडियोस चलाई जाती हैं। किसी वीडियो में बच्चे और बच्चियाँ अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, तो किसी वीडियो में सुनाते हैं अच्छी अच्छी नातें, दुआएं, कलीमे और बताते हैं नेकी के काम और अमीर अहले सुन्नत से करते हैं कुछ सवालात और अमीर अहले सुन्नत वीडियोस देखने के बाद उनके प्यारे से जवाबात देते हैं और दुआएं भी देते हैं और साथ ही साथ तरबियत भी फरमाते हैं। माशाअल्लाह, प्यारी प्यारी फूल जैसी मदनी बच्चियों और प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की अदाएं मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको इनके माँ बाप समेत बेहिसाब बख्शे और इन सब बच्चों को बच्चियों को बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। सबको माँ बाप समेत दादा दादी नाना नानी भाई बहनों समेत हज नसीब करे, मीठा मीठा मदीना दिखाए, बार बार ये सआदत बख्शे। आमीन बिजाए खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि अमीर अहले सुन्नत से एक बच्ची ने वीडियो के जरिए से
एक सवाल किया कि अमीर अहले सुन्नत आप बच्चों का नाम ईमान रखने से मना फरमाते हैं, इसकी क्या वजह है? अमीर अहले सुन्नत ने जवाब देते हुए फरमाया, ईमान नाम रखना तो जायज है, लेकिन मैंने मशवरा देते हुए कहा था कि ये नाम ना रखा जाए। आप भी अपने बच्चों को मदनी मुज़ाकरे में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर वीडियोस भेजिए और अमीर अहले सुन्नत की दुआएं लीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारी अपडेट्स बताई। और अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें अदील भाई हमें बताएंगे मौसम की खबरें। तो अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है वेदर डेस्क। बच्चों का खबरनामा खबरनामा खबरनामा। मैं हूँ अदील और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मौसम की खबरें। प्यारे बच्चों, गर्मियों का मौसम अल्लाह पाक की रहमत है। इस मौसम में काफी सारे दरख्त फल देते हैं और बहुत सारे फूल खिलते हैं, जिनकी वजह से हवा में खुशबू फैल जाती है। ये मौसम बल्कि अल्लाह पाक की कोई भी बनाई हुई चीज बेमकसद नहीं। गर्मी में दर्जा हरारत आम दिनों से ज्यादा हो सकता है। मौसम कहीं गर्म और कहीं ज्यादा गर्म भी हो सकता है। दुनिया में गर्मी का मौसम या तो जून से सितंबर में आता है या फिर दिसंबर से मार्च तक। इस मौसम में आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, किन बातों को जानना और फिर उनकी एहतियात करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज वेदर डेस्क से आपको समर सीजन में होने वाली हीट वेव के बारे में एक स्पेशल रिपोर्ट पेश करेंगे। ये बहुत ही खास बातें हैं जो हम सब बच्चों ने पहले जाननी है, फिर समझनी है और फिर याद रखनी है इंशाअल्लाह। इन्हीं को अपनाकर आप भी गर्मी के खतरनाक असर से बच सकते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने बेसिक 4 वेदर्स पैदा फरमाए हैं, जिनमें समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम वेदर्स शामिल हैं। हम विंटर सीजन गुजार चुके हैं और इन दिनों समर सीजन जारी है, जिसमें वेदर टेम्परेचर काफी गर्म रहता है। इस सीजन में सख्त गर्मी की वजह से हीट वेव भी आती है, जिनसे बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसा कि हाई रिकॉर्डेड टेम्परेचर्स हम सब बिलखुसूस छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। इसके अलावा हमारा बॉडी टेम्परेचर भी इस वेदर कंडीशन में डिस्टर्ब हो सकता है। बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हीट वेव क्या होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया के बहुत सारे रीजन्स में एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाए तो उसे हीट वेव कहा जाता है। ये हीट वेव एक दिन से लेकर तकरीबन एक हफ्ते तक जारी रह सकती है, यानी उस एक हफ्ते के दौरान टेम्परेचर बढ़ा रहेगा और गर्मी भी ज्यादा महसूस होगी। प्यारे बच्चों, हीट वेव को खामोशी से हमला करने वाला भी कहते हैं। ये हमारी जरूरत से ज्यादा हॉट वेदर का एक ऐसा अंदाज है कि जिसमें ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी ज्यादा हो जाती है। खास तौर पर ऐसी कंट्रीज जो समंदर के पास हो, वहाँ हीट वेव ज्यादा आती है और खतरनाक भी होती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान भी पहुँच सकता है और खतरनाक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इस हीट वेव की वजह से सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, जिस्म में पानी की कमी हो सकती है, पसीना आना रुक सकता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं। बच्चों, यहाँ हम आपको कुछ ऐसे साइंस बता रहे हैं कि अगर आप या आपके घर में किसी दूसरे छोटे बहन भाइयों या फिर आपके किसी बड़े के साथ ऐसे साइन नजर आए तो समझ जाएं कि उन्हें हीट स्ट्रोक हुआ है। इन साइंस में पल्स लेने में मुश्किल महसूस करना, हार्ट और पल्स स्पीड का बढ़ जाना, पसीने का ना आना, वॉमिट आना और हमारी स्किन का हॉट एंड रेडिश हो जाना वगैरह शामिल है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि समर सीजन के दौरान छोटों और बच्चों को चाहिए कि ढीले ढाले और हल्के रंग के कपड़े पहने। बहुत सारे बच्चे शदीद गर्मी में घर से बाहर खेलने में मगन रहते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। दिन का औकात खास तौर पर शदीद गर्मी के वक्त घर से बाहर न जाएं। तेज धूप में गाड़ी ना खड़ी करें, इसमें मौजूद भी ना रहें, चाहे गाड़ी के शीशे खुले हुए हो, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तेज धूप में जाने से पहले अपने साथ पानी की बोतल लाजमी रखें और वक्फे वक्फे से पानी पीते रहें। बड़ों को चाहिए कि इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके बच्चे पानी या फलों का रस पीते रहें और बहुत ज्यादा ठंडी ड्रिंक ना पिएं और ऐसी ड्रिंक्स भी ना पिएं जिसमें मिठास ज्यादा हो। सर पर गीला कपड़ा रखें ताकि तेज धूप के डायरेक्ट इफेक्ट से मुतासिर ना हो। जी तो प्यारे बच्चों, आपने ये सब सुना और हमें उम्मीद है आप जरूर इससे फायदा उठाएंगे। माशाअल्लाह। देखा बच्चों, हमारे अदील भाई हमें कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और मैंने तो गौर से सुना
امید ہے آپ بھی توجہ دیں گے اور اس موسم میں احتیاط کر کے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے پیاروں کی بھی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ غفران بھائی ایک مسئلہ ہے۔ اللہ رحم، کیا مسئلہ ہو گیا زیزان بھائی؟ غفران بھائی مجھ سے ہوم ورک کرنا یاد نہیں رہتا، میں کیا کروں؟ تو اس میں کون سی مشکل ہے؟ میں آپ کو ابھی اس کا حل دکھا دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ، حل بتانا تو سنا تھا، یہ حل دکھانا کیا ہوتا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ زیزان بھائی، کڈز منی چینل کے زبردست پروگرام پیاری کلیوں میں ہوم ورک یاد کرنے کی ٹپس بتائی گئی ہیں۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کلپ ڈیسک میں۔ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ پیاری بچیوں، اکثر ہمیں اسکول یا مدرسے میں گھر پر کرنے کے لیے جو کام دیا جاتا ہے یعنی ہوم ورک، وہ دو طرح کا ہوتا ہے، لکھنے والا اور یاد کرنے والا۔ لکھنے کا کام کرنا تو عام طور پر مشکل نہیں ہوتا، لیکن یاد کرنے میں کچھ بچے اور بچیوں کو آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا مینٹل لیول ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ کسی کو سبق یاد کرنا مشکل لگتا ہو تو کسی کو آسان۔ تو آج ہم آپ سے سبق یاد کرنے کے حوالے سے کچھ ایسی ٹپس شیئر کریں گے جن سے آپ کو سبق یاد کرنے میں انشاءاللہ ضرور ہیلپ ملے گی۔ سبق یاد کرنے کے لیے روشن اور ہوادار جگہ سلیکٹ کیجیے۔ آپ کے پاس پڑھائی سے دھیان ہٹانے والی کوئی بھی چیز مثلاً موبائل، ویڈیو گیم وغیرہ وہاں نہ ہو جہاں آپ سبق یاد کر رہی ہیں۔ سبق یاد کرنے کے لیے ایسا وقت سلیکٹ کیجیے جس وقت آپ کی کوئی اور مصروفیت نہ ہو تاکہ پڑھائی میں آپ کا دل لگ سکے، اور مختلف سبجیکٹس کے لیے ٹائم ٹیبل بنا لیجیے۔ جو سبجیکٹ ہارڈ لگتا ہے اسے زیادہ ٹائم دیجیے۔ سب سے پہلے ایک بار پورے سبق کو توجہ سے پڑھ لیجیے تاکہ سبق میں جو بتایا گیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ پھر 2 سے 3 بار ایک ایک پیراگراف کو غور سے پڑھیے۔ اس کے بعد اپنا یاد کیا ہوا پیراگراف زبانی یعنی بغیر دیکھے لکھیے۔ پھر کتاب اور کاپی سے اپنے لکھے ہوئے پیراگراف کو میچ کر کے دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ یا جملے آپ نے صحیح نہ لکھے ہوں یا ان میں سے کچھ مس کر دیا ہو۔ ان لفظوں اور جملوں کو بار بار دہرا لیں۔ اسی طرح باقی سبق بھی یاد کر لیجیے۔ اس طرح سبق کافی دنوں تک یاد رہتا ہے۔ سائنٹیفک فارمولا، تعریفوں یعنی ڈیفینیشنز اور خاص تاریخوں کو بار بار لکھ کر یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح سوچنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور غلطیاں پتہ چلتی ہیں۔ املا یعنی ڈکٹیشن یا اسپیلنگ کی غلطیاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لکھنے کی پریکٹس سے رائٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے اور کام کی اسپیڈ بھی بڑھتی ہے۔ اپنا ہوم ورک وقت پر کرنا چاہیے۔ ایک پیراگراف اچھی طرح سمجھ کر اگلے پیراگراف کی طرف بڑھنا چاہیے۔ سبق یاد کرنے کے دوران اگر تھکاوٹ یا اکتاہٹ محسوس ہو تو کچھ دیر کے لیے بریک کر لیجیے۔ پراپر نیند سے دماغ کے خلیے یعنی سیلز فریش ہو جاتے ہیں۔ نماز کی پابندی، صاف ستھری اور بیلنس ڈائٹ، روز کی واک، ہلکی پھلکی ایکسرسائز اور مدنی چینل پر کوئی سلسلہ دیکھ کر اپنے دماغ کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ غفران بھائی یہ تو بہت ہی اچھا کلپ تھا، اس سے مجھے اور بہت سے بچوں کو ہوم ورک کرنے میں فائدہ حاصل ہوگا۔ اس زبردست سیگمنٹ کے ساتھ اب ہم دیکھیں گے ایک بہت کیوٹ سا خاکہ جس میں چھوٹی آپا ہمیں سکھائیں گی کچھ سنتیں اور آداب۔ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ بچوں کا کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں میری بات سنیں۔ جی، آپ لوگوں کو میں نے کچھ بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت و تعلیمات کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں آپس میں بات کس طرح کرنی چاہیے اور ان سنتوں اور آداب پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ تو بتائیں نا، بات کرنے کی سنتیں اور آداب
हदीस शरीफ में आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ और जुदा जुदा कलाम फरमाते थे। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर बात करना अच्छी बात है, बल्कि मुस्कुराना तो सुन्नत भी है, लेकिन आवाज के साथ कहका लगा कर हंसना बुरी बात है। हदीस शरीफ में है कि कहका शैतान की तरफ से है। अल्लाहु अकबर। जी, बात करने के दौरान बार बार हाथ मारकर या ताली मारते हुए बात करना भी अच्छी बात नहीं है, और किसी से बात करते वक्त कान या नाक में उंगली डालना भी बहुत बुरी बात है। ये तो मैं भी करती हूँ, तो फिर आपको भी नहीं करना चाहिए। एक और अहम बात ये है कि हमें चाहिए कि हम जब भी बात करें हमारे मुँह से अच्छी बात ही निकले, बुरी और फजूल बातों से हमें बचना चाहिए। या तो हमें काम की और अच्छी बात करनी चाहिए, या फिर हमें खामोश रहना चाहिए। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो चुप रहा उसने निजात पाई। ठीक कह रही हैं आप। मैं कोशिश करूंगी कि इंशाअल्लाह हमेशा इन बातों पर अमल करूं, और जब भी बात करूं हम सबके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए हमेशा अच्छी बात करूं, वरना खामोश रहूं। इंशाअल्लाह आइंदा मैं भी ऐसा ही करूंगी। हदीस शरीफ में है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अच्छी बात करो वरना खामोश रहो। बस यही बताना था आप लोगों को। अब आप दोनों बैठकर बातें करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, अब वक्त हुआ हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है उर्स मुबारक। तो आइए हम देखते हैं एक रिपोर्ट उर्स मुबारक पर। बच्चों का खबरनामा खबरनामा खबरनामा। आज हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे साहबी हजरत साद बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु की। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कबीले के लोगों को दावत दी तो वो सब के सब मुसलमान हो गए थे। यूं आपके ईमान लाने से मदीना शरीफ में कई सारे मर्द और औरतें भी ईमान ले आई थी। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु जंग बदर में भी शरीक हुए और गज़वा खंदक में भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे, और इसी जंग में आप जख्मी हो गए थे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके इलाज के लिए मस्जिद नबवी में एक खैमा भी लगवाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए दुआ भी फरमाई थी कि या अल्लाह पाक, साद ने तेरी राह में जंग की है और तेरे नबी पर ईमान भी लाया है, तू सबसे बेहतर तरीके से उसकी रूह कब्ज फरमा। इस मुबारक दुआ के कुछ घंटों बाद आपका इंतकाल हो गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे में 70,000 फरिश्ते शरीक हुए थे, और जैसे जैसे आपकी कब्र मुबारक खोदी जा रही थी वैसे वैसे मुश्क की खुशबू तेजी से फैलती जा रही थी। दुनिया के सबसे अफजल कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में आपकी कब्र मुबारक है। अल्लाह पाक की उन पर करोड़ों रहमतें हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी रिपोर्ट थी। अब वक्त हुआ है एक खाके का, जिसमें हम देखेंगे कि एक छोटे से काम का कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तो आइए देखते हैं छोटा काम बड़ा फायदा। बच्चों का खबरनामा खबरनामा खबरनामा। क्या वो कश्मीर भाई क्यों रुके हैं? हसनैन भाई, ये शाखें देख रहे हैं आप? जी देख तो रहा हूँ, लेकिन इतनी गौर से नहीं जितनी गौर से आप देख रहे हैं। लगता है आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। सही समझे हैं आप। इसे उठाने में मेरी हेल्प करेंगे? क्या हो गया कश्मीर भाई, क्यों कपड़े गंदे करवाएंगे? इसे उठाकर करना क्या है आपने? अरे हसनैन भाई, आप उठाएं तो सही, मैं आपको सब बताता हूँ। अच्छा चले उठा लेते हैं। अरे कश्मीर भाई, करना क्या है, कुछ बताएं तो सही। बेफिक्र रहें हसनैन भाई, मैं आपको बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी। आप चले तो सही। बस अब रुक जाएं हसनैन भाई।
जज़ाक अल्लाह कतबीर भाई, अब इस शाख की वजह से लोग अब इस मेन होल में गिरने से बच जाएंगे। जी बिल्कुल, और बहुत सारे लोग जख्मी होने और चोट लगने से भी बच जाएंगे। जज़ाक अल्लाह हसनैन भाई, आपने मेरी इस काम में हेल्प की। अरे कतमीर भाई, छोटा सा काम तो था। बिल्कुल, लेकिन इस छोटे से काम का फायदा बहुत बड़ा होगा। माशा अल्लाह, बहुत अच्छा खाका था। उफरान भाई, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके ऐसे छोटे छोटे काम करते रहा करें जिनसे लोगों का फायदा हो। जी बिल्कुल, या तो लोगों का इन कामों से फायदा हो या फिर उन्हें किसी नुकसान से बचाया जा सके। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मजीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के लिए देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करने के लिए देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। और अब हमें इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।